السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خراسات. میرا نام مبشر لقمان ہے. لندن میں ہوں اور بڑی تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور ابھی اطلاع یہ بھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ پیناما کیس کا بالآخر فیصلہ جو ہے وہ کل 11:30 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ آ جائے گا. اس کا مطلب ہے بڑا کیس، بڑا فیصلہ، اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے. اور یہ کریڈٹ صرف چینل 24 کا ہے، اور یہ کریڈٹ میں کہوں گا کہ چودھری غلام حسین کا ہے، کہ جو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ہفتے تھرسڈے یا فرائیڈے کو فیصلہ آئے گا، اور لارجر بینچ جو ہے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ دے گا. تو فل کریڈٹ ٹو چودھری غلام حسین صاحب. اور بڑی اندر کی آپ کی پریڈکشن تھی، اور میں تو پہلے بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں. چودھری صاحب جو ہے علم و نجوم کا حال بھی جانتے ہیں، ان کو لائٹ نہ لیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ موجود ہیں واجد شمس الحسن، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد UK44 کے روح ہیں یہاں کے. ان سے تو میں بات کروں گا، لیکن ابھی تک یہ اس کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو اتنا عرصہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے، تو 2 ججز نے، آنریبل ججز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف گاڈ فادر ہیں. ان کو ایک کرائم سے، کرمنل سے انہوں نے تشبیہ دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. 3 فاضل ججز نے یہ کہا تھا کہ مزید تلاشی ہونی چاہیے، مزید ایویڈنس آنے چاہیے، کہ تاکہ وہ اپنی رائے قائم کر سکیں یا نہیں. سپریم کورٹ کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں ہی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، مختلف محکموں کے لوگ اس میں موجود تھے جو سپریم کورٹ نے اپروو کیے تھے. اور انہوں نے 2 مہینے کے قلیل عرصے میں انہوں نے انتہائی تندرست سے اور بڑی محنت سے GIT نے اپنے سفارشات، گزارشات اور تمام انفارمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پیش کر دی. 10 جلدوں پہ مشتمل یہ ساری کاروائی تھی، جس کی 9 جلدیں جو ہیں وہ پبلک میں آ گئیں. 10ویں جلد جو ہے وہ پبلک سے ود ہولڈ کی گئی کچھ وجوہات کی بنا پہ. لیکن یہ بھی خدشہ تھا کہ 10ویں جلد کھولنے کے بعد مزید مختلف نوعیتوں کے کیسز جو ہیں وہ میاں صاحبان اور ان کے حلقہ احباب اور ان کے اہل خانہ کے اوپر کھولے جا سکتے ہیں. جو پہلے ہمیں چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، قانون کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بڑے آرام سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف یقینی طور پہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا. ان کے بچے جو ہیں وہ اہل نہیں رہیں گے پبلک آفس کے. اسحاق ڈار اور دیگر جو ہیں وہ بھی نااہل ہوں گے. میں آج ایک بریکنگ خبر دے رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے اسحاق ڈار جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے سینئر ترین لوگوں کو جا کے ملتے رہے ہیں. ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں خفیہ، اور انہوں نے وہاں پہ کوشش کی. انہوں نے کہا کہ انٹرم طور پہ مجھے کسی طرح وزیر اعظم بنوا دیں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اور میں بڑا خیال کروں گا آپ کا. IB نے، انٹیلیجنس بیورو نے یہ خبر میاں نواز شریف کو پہنچا دی. 12 دن پہلے یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں. میاں نواز شریف نے اس دن سے اسحاق ڈار صاحب سے کلی طور پہ اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ رکھ لیا. یہ بھی خبر ملی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہنا شروع ہو گئی ہے. دل کا عرضہ تو تھا ان کو، ڈائبٹیز جو ہے وہ شدید طریقے سے ان کو ہٹ کر گئی ہے، اور ان کا جو وزنی حجم ہے ان کا، وہ ان کے لیے ایک پرابلمٹک چیز ہو رہی ہے. ان کی گاؤٹ کی تکلیف جو ہے وہ مزید شروع ہو گئی ہے. بیگم کلثوم نواز کی ٹانگوں اور گھٹنوں میں تکلیف زیادہ شروع ہو گئی ہے. تو میاں صاحب کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. UK اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں واجد شمس الحسن. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے ہائی کمیشن رہے لاسٹ میں یونائٹڈ کنگڈم میں ریٹائرمنٹ سے پہلے. اور اسد جو میں نے تعارف پہلے کرایا. کیسے دیکھتے ہیں کل کے فیصلے کو؟ یہ بڑا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت ہی دور رس نتائج کا حامل ہوا، اور میرے خیال سے ہماری عدالتی جو تاریخ ہے، جوڈیشری کی جو تاریخ ہے، وہ ری رائٹ کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ تو 1948 پاکستان کی تاریخ ری رائٹ ہو رہی ہے. بالکل، میں آپ ایگری ود یو کہ پاکستان کی تاریخ ری رائٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کو صحیح ڈگر پر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے، اس کے بڑے نتائج جو ہیں، بڑے زیادہ کانسیکوینسز سیریس ہوں گے اس کے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی. اب چلتی رہے گی. آپ کو لگ رہا ہے میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ بالکل 100% ڈسکوالیفائی ہوں گے. وہ الیکشن کے قابل ہی نہیں رہیں گے. وہ ان کو قابل ہی نہیں رہیں گے. وہ ان کو تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ان کے پر تو بھی بہت سارے مقدمات پہ چلیں گے.
اور وہ مقدمات سے کیسے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، کیونکہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اب تک جو کہتے رہے وہ تو سب جھوٹ کا معاملہ۔ میاں نواز شریف صاحب کو بتاؤں کہ پرچے کٹوانا، مقدمے کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ میں کئی سالوں سے آپ لوگوں کے بنائے ہوئے مقدمات پہ بھگت رہا ہوں مختلف عدالتوں میں، یقین مانے بڑی خاری ہوتی ہے۔ کیوں اسد صاحب؟ بالکل بشیر صاحب، جیسا آپ نے کہا، یہ تو اب دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کل عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ان کی تقریریں آئی ہیں، انہوں نے جو بینچ بنایا اس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلہ مانیں گے۔ اور جو آج چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ تصادم کی طرف جائیں، آپ عجز و انکساری کے ساتھ اس مقدمے کے فیصلے کو تسلیم کیا کریں۔ چودھری نثار کو ہنٹ ہو چکی کل کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے پچھلے دو ایک تو انہوں نے کمر درد کا بہانہ بنا کے کیا، دوسرا لاہور کے دھماکے کے اوپر جس کو سب کو افسوس تھا، اور آج جو ان کی جو پریس کانفرنس ہونا اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ فیصلہ کل آنے والا ہے۔ اور شاید آج کے بعد چودھری نثار صاحب کے پاس وہ وقت نہ رہتا جو انہوں نے آج باتیں کی۔ اگر وہ کل کرتے یا اس کے بعد کرتے تو ان کی اتنی وقت نہ ہوتی۔ اتنے لوگوں کے اقامے نکل آئے ہیں تو ہو سکتا ہے اب صرف چودھری نثار کو وزیر اعظم بنانا پڑے۔ دیکھ لیں ابھی تو بہت سارے لائن میں لگے ہوئے تھے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ اپنا اقامے کئی نکل آئے ہیں۔ اقامے جو ہیں ان کے پاس آلریڈی ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی؟ نہیں، میرے پاس نیشنلٹی ہو گئی ہے میری یہاں پر، آپ کی اطلاع کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں کوئی ایسی مجھے وہ نہیں ہے کہ تکلیف ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اور مگر Who will be the next prime minister? نیکسٹ پرائم منسٹر، دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن فار می ٹو آنسر، کیونکہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ اب تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا ان کا فیصلہ جو ہے۔ میاں صاحب کو تو جانا ہے ہی، آپ نے بھی کہا، اور سب فیصلہ بھی یہی ہوگا، مگر نیکسٹ پرائم منسٹر کا کیا ان کو چانس ملتا ہے؟ مگر ان کی مورل اتھارٹی اب کوئی نہیں رہی ہے کہ کسی کو اپنا نامنیٹ کریں، اپنا پرائم منسٹر، اپنا جانشین بنائیں۔ کوئی مورل اتھارٹی Who نہیں will اب be ان the کو next آپس prime میں۔ minister? پرائم منسٹر تو بشیر صاحب مجھے انتخابات کے بعد ہی ملتا کوئی نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر کو، کیونکہ اب میاں صاحب کے پاس اگر کل وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے جو ایم این ایز ہیں وہ استعفے دیں گے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور پاکستان جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف میرا جانے نہیں کی۔ خیال کہ اتنی جلدی یہ ہوگا۔ جی میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ اگر نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو تین بڑے نام جو ابھی تک آئے ہیں ان میں سے میں کسی کے پر بھی متفق نہیں ہوں۔ اگر میں متفق ہوں تو خرم دستگیر جو گجرانوالے سے جو ایم این اے ہیں، جب پرائم منسٹر یہاں پر تھے تو وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ جب وہ میاں صاحب یہاں پر علاج کے لیے تھے تو وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خرم دستگیر اگر مسلم لیگ نون کنٹینیو کرتی ہے تو خرم دستگیر جو ہے وہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ رائٹ، اور ایک بریک لینے کے بعد جب آئیں گے تو مرتضیٰ شاہ بھی ہمیں جوائن کریں گے جیو نیوز سے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کل فیصلہ کن گھڑی کا دن آ چکا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے دل سے اتر چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کیبنٹ سے بھی اتر جائیں گے، کیونکہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ میاں صاحب کو پتہ چل گئی ہے۔ ایک مسلم لیگ نون کے اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ 45 دن ایک انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، اس دوران میاں شہباز شریف الیکشن لڑیں گے اور ان کو بنایا جائے گا پرائم منسٹر، یعنی جب تک الیکشنز نہیں ہوتے 6-7 مہینے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر چیف منسٹر پنجاب کون بنے گا؟ فی الحال میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا ایک چڑیل نے مجھے کل کیا بتایا۔ ٹیک اے بریک۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟
अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेरी क्विकली चौधरी निसार ने क्या किया? निसार का बड़ा खौफनाक डिसीजन है ये मेरे नज़दीक, कि मैं सियासत से भी दस्तबरदार हो जाऊंगा, एमएनए भी नहीं रहूंगा। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी सियासत में कोई बहुत ही नई चीज़ होने वाली है। अच्छा, जिसमें इनका रोल कुछ भी नहीं होगा, या होगा तो जो हमें पता नहीं चलेगा अभी। नहीं, उनका मैं ऊपर रह के, मैं पीछे रह के तो मैं देखूंगा क्या करना है। नहीं, वो जो भी देखेंगे, मगर इसका मतलब है कि सियासत सच कुछ जवाल पजीर होगी अब। मेरा ख्याल यही है। आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप भी तो उसी सियासी पार्टियों के लोग हैं ना, आप ही बताएंगे हमें। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही कुछ है, और बहुत हालात जो हैं बहुत मुख्तलिफ तरीके से सूरत इख्तियार करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी, और जिसके मुतालिक लोगों का ख्याल है सारा एक पैटर्न है जिसके तहत हुआ है। तो इसका मतलब है ये यहाँ मामला ख़त्म नहीं होगा। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी डिसीजन लेना है, जो कि आना है, उसके दूररस नताइज होंगे, और पूरा अकाउंटेबिलिटी की एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी आपके मुल्क में, जिसके लिए हम लोग सबको को तैयार रहना चाहिए। जो कोई यानी कि कतरी कागजात, अगर प्रॉब्लम ये है, कतरी कागज की आप बात कर रहे हैं, मियाँ साहब ने जितने भी कागज अभी तक दिए वो क्या झूठ है? वो तो कहते हैं झूठ है, वो कहते हैं सच है, लोग कहते हैं नहीं, सच। अगर अदालत की बात माननी है ना हमें तो। हाँ, अदालत ने तो अभी तक कोई उनका यानी कि वो ये कहते हैं फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, मुख्तलिफ लोगों को अब सजाएं भी मिल रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बड़े, मेरा नज़दीक ये है कि बड़ा केयरलेस तरीके से एक उनका केस हैंडल हुआ। अच्छा, रात मैंने एक ख्वाब देखा था, मैं बड़ा डरते हुए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ख्वाब देखने को ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर ऑफ कॉम इस बात को समझेगा कि मैं ख्वाब ही देखा है। ख्वाब में एक चुड़ैल आई मेरे ख्वाब में, खौफनाक चुड़ैल थी वो। यानी आपको अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो शायद आप किसी से मुशाबियत कायम कर लें, माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र है, लेकिन यह है कि मैंने नहीं देखी इतनी खौफनाक। उसने आके मुझे कहा कि जो मर्जी हो मेरी बात का यकीन करो कि मियाँ नवाज शरीफ ने तारीख पैदाइश भी गलत लिखी हुई है। ये सारी ख्वाब की बातें हैं भाई। अच्छा, लेकिन मैंने कहा आप जितने पुराने हैं आपको यकीनन पता होगा कि 24 अक्टूबर है कि 25 दिसंबर है। किसकी? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ कायद आज़म की पैदाइश जो है वो जरा डिस्प्यूटेड है, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद रखी है, तो इसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल सैयद है क्योंकि मेरे सामने हुए हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ ना, कि जो आपने एक अपने इंतखाब डेट ऑफ बर्थ का क्राइस्ट कायद आज़म, इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ के जितने जायचे जो लोग निकालते रहे वो इसलिए गलत निकलते रहे कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो जुल्म नजूम वाले और जो सितारों की दुनियाओं से खेलते हैं उनका पहुंच नहीं है उन तक। उसकी वजह यही है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें घंटों का फ़र्क है, या दिनों का फ़र्क है, या महीनों का फ़र्क है। महीनों का फ़र्क है। और मुझे ये चुड़ैल ने बताया रात को, अब वो जो चुड़ैल कहती है कि जी जहाँ ये चुड़ैल नहीं है वो, कोई मेरे ख्याल से चुड़ैल ये ख्वाब में आई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, हकीकत में होगी तो उधर इकबाल साहब गिरना शुरू हो जाएंगे वो कि कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन लगता है आपको मियाँ साहब ने डेट ऑफ बर्थ भी फौज की होगी? जी, जैसे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, और जब उस वक्त के पूरा मीडिया फोकस कर रहा है, पूरी दुनिया फोकस कर रही है, और इतने ज्यादा अग्रेसिव माहौल में उन्होंने इतने फौज डॉक्यूमेंट दिए हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ दिए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने खौफ में मुब्तला होके या डर के दिए हैं, बड़े उन्होंने जो है सूरज की रोशनी में, रोजे रोशन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। उन्होंने कहा है कि ये है वो जराए और असम्बली की तकरीरें हैं, ये है वो बयानात, और अगर वो पै दर पै एक एक करके ये साबित हो रहा है कि ये जाली है, तो डेट ऑफ बर्थ तो एक छोटी सी बात है जी। तब सेंट एंथनीज हाई स्कूल से तो आप ही रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं ना, क्योंकि मैट्रिक वहां से किया था। नहीं बिल्कुल, आप देखिए हमारा, मेरे ख्याल से हमारे जमाने में तो नहीं होगा रिकॉर्ड, वहाँ का नहीं, अब नहीं होगा। इनका आप फरौन के जमाने तक चले जाए तो हम कहाँ का लाएंगे, लेकिन ये बहरहाल 3 जनरेशन का निकाला आपने रिकॉर्ड। हाँ जी, तो उसमें आप देख लें। मगर मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में इनकी पैदाइश है उस, और जिस माहौल में हुई है, उस ज़माने में हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे। इस्लामी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है,
जो पता है उनकी वालदा वगैरह को, दूसरों को नहीं पता होगी। और वो जो है बहुत सारे नजूमी ऐसे हैं जो चंद एक आपके जैसे आप नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे हैं, उस डेट से वो निकाल सकते हैं इनकी डेट। मुझे अब मैंने आज पूछा भी है एक दो नजूमियों से, उन्होंने कहा जी शर्त लगा लें ये 25 दिसंबर नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ तक में 2 नंबरी। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने वाले इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर साबित हो सकते हैं, जाली साबित हो सकते हैं, लेकिन ये जो उनके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, जो उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, वो कभी मंजर आम पर नहीं आए। सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर में कल सुबह से दौड़ें बहरहाल लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रेशर करेंगे कि जी हमें डेट ऑफ बर्थ बताएं, और वो मुख्तसर में रहेंगे बताएं कि ना बताएं। बिल्कुल इसी तरह होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस ग्वाल मंडी जहाँ पर क्या है ये लाहौर का, अभी उसके करीब करीब रहते हैं, उस वक्त तो किसी को इतना पता ही नहीं था लाहौर में और पाकिस्तान में कि बच्चे का सर्टिफिकेट बनना है, उसको टीके लगने हैं, उसको एक एक उसकी पूरी डिटेल दर्ज होनी है। वो तो बाद में जाके जब वो कहीं शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती तो वो कहते थे कि आप 18 साल के हो गए हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आए। तो उस वक्त जो भी उनके दिमाग में आता था वो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करते थे। यूके में क्या समरी है जी फीलिंग की? इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जी उनको भी जो यहाँ पर जो इस किस्म का क्रिस्टल बॉल देखते हैं, दूसरी करते हैं, जो पूछा ऐसे मजाक में कि भाई क्या आपका ख्याल है? मजाक में नहीं, आपने सीरियस पूछा था, आप छोड़ दें। तो वो कहने लगे कि भाई बात ये है कि जिस शख्स की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो सही उस पर, और इस पर डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ये नहीं होता अगर आप एक्यूरेट चाहते हैं तो टाइम ऑफ बर्थ किस वक्त आपका पैदाइश हुई है, टाइम क्या था, जगह, सारी 3-4 आधे घंटे से फर्क पड़ जाता है भाई। आधे के 1 मिनट से फर्क पड़ जाता है। ये इनका कहना यही है कि 1 मिनट 5 मिनट का फर्क बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ उसमें। मगर एक बात जो मैंने आपसे अर्ज की कि वो कहते ये हैं कि अगर आपके मेजर इवेंट्स हमारे सामने हैं तो कहने मेहनत बहुत करना पड़ती है, बहुत आपको, यानी कि बहुत सारी किताबें देखकर और बहुत सारे नक्शे लगाना कर आप पता कर सकते हैं कुछ हद तक, मगर ये नहीं कि 100% पे। मगर इनके लेकिन एक बात तय है ये चुड़ैल के मुताबिक कि मियाँ साहब कैप्रिकॉर्न नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक अंदाजा ही है जो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप में चुड़ैल ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ। असल तो मियाँ साहब ही बता सकते हैं, बल्कि मियाँ साहब की जो बुजुर्गान है वही बता सकते हैं। कामरान शफी साहब बता सकते हैं कि मियाँ साहब की असल तारीख पैदाइश क्या है, या उनके स्कूल के सर्टिफिकेट बता सकते हैं, या साले जाफर बता देंगे। बहुत करीबी जो उनके सिद्दीकी साहब है वो भी बता सकते हैं। वो तो खैर अपना कुदरती आफात के थ्रू बताते हैं ना निशान में साले साहब, तो कि उस दिन ठंडी हवाएं चली थी, गटोर तूफान आ गया था, या बारिश हो गई थी, या सैलाब आ गया था, कुछ किस्म की चीजें जो होती हैं निशानदेही के लिए, वो भी कोई ऐसी चीज वही बतला सकते हैं इनके बुजुर्ग। ये क्या किया साहब? आज बड़ी अहम बयान देखे गए। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि मियाँ साहब को कॉन्फ्लिक्ट से गुरेज करना चाहिए। तो ये बात तो अया है कि मियाँ साहब के जो हवारी हैं, जो इस वक्त उनकी किचन कैबिनेट में लोग हैं, वो इस फैसले को आसानी से इज्जो इंकसारी के साथ मानने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर फैसला उनके खिलाफ आया। तो ये चोई साहब कह रहे हैं कि ये मैं उनको कैबिनेट में बताना चाहता था, 1-to-1 में बताना चाहता था, लेकिन 1.5-2 महीने से मेरी मुलाकात ही नहीं उनसे, मौका ही नहीं मिला जी। तो अगर इंटीरियर मिनिस्टर अपने वजीर आजम को नहीं मिल सकता तो इंटीरियर मिनिस्टर कमजोर है कि वजीर आजम घुमंडी है? ये तो ऐसे ही है कि वजीर आजम के ऊपर ही आता है, क्योंकि चौधरी निसार तो कोई कमजोर आदमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसको कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर असल में काफी शहजोर किस्म का आदमी है। पाए जो खाते हैं, पाए भी खाते होंगे और मगज भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। और मियाँ साहब के बारे में ये मगज तो पता नहीं किस किस का खा लेते हैं। तो मियाँ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि 35 साल उनको सियासत बावजूद, 3 दफा वजीर आजम होने के बावजूद, जिला वतनी के बावजूद, आज भी वो तनकीद का एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और कितना बर्दाश्त करें यार, पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया तो अपना उनके करतूतों से भरा हुआ है। नहीं देखिए, और कितनी तनकीद बर्दाश्त करे वो। आज भी अगर मियाँ साहब का कोई इंटरव्यू करने जाता है तो वो कहते हैं आप सवाल भेज दें, और जब वो सवाल से हटके कोई सवाल करता है और कहते हैं नहीं आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, आपने तो ये सवाल में लिखा ही नहीं था। तो ये जब आप इधर देखते हैं मियाँ साहब को, तो वही
सवाल जो उनको पहले ही फीड किए गए होते हैं वो ही लेते हैं, जो दूसरा सवाल करता है उसकी तरफ तो मियां साहब देखते भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो वाइज साहब, अगर हम इसकी तफसीलात निकालेंगे और डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई तजाद हो तो फिर क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? तजाद होगा तो कन्फ्लिक्ट रहेगा, यानी कि जो भी वो मैं आप ज्योतिषियों का नहीं पूछ रहा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हुकूमती अमूर फिर क्या होंगे? हुकूमती अमूर पर जनाब, जैसे इन्होंने पहले फरमाया अपने मलिक साहब ने कि एक तसादुम की सियासत इनकी हमेशा, उनका ख्याल ये है मियाँ साहब का और रहा है, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो सही भी है कि तसादुम की सियासत, वो कहते हैं मेरा एडवांटेज है। कन्फ्रंटेशन। आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा कराची से। आप लाहौरियों को नहीं जानते ना? मैं लाहौरिया हूँ, हैं? आप SHO तो दूर की बात है, हम तो वापडा के SDO के सामने नहीं खड़े होते। आपका ख्याल में कि इनके लिए कोई खड़ा होगा यहाँ पे? कल को कोई फैसला आ गया? हमने तो यही सुना था कि आपने गलत सुना भाई। आपने कब देखा हमें हम रहने देना, मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं लाहौरिया हूँ बस, तो मैंने मान लिया तो काफी नहीं है। मैं आई कैन एग्री विद यू। तो काफी 12 अक्टूबर 1999 का मैं शाहिद हूँ जब कू हुआ था, मुशर्रफ साहब ने बल्कि दूसरे लोगों ने जब इनको इक़्तिदार से निकाला, तो यकीन करें कि 2 था, एक सीयत थी मियाँ साहब की, पूरा लाहौर कहा यह जाता था कि मियाँ साहब के साथ खड़ा है, एक आदमी बाहर नहीं निकला। अभी कौन सा निकला है? बाहर नहीं निकला इतने महीनों में, अभी कौन सा निकला है बाहर? दूसरी बात आपको मैं बताऊं माजरत के साथ, PTI वाले नाराज ना हो मेरे से, इमरान खान ने जब सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी और बिजली के बिल फाड़ने की, फैसलाबाद में बहुत फाड़े बिजली के बिल लोगों ने जी, फोटो कॉपीज, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपीज फाड़ी थी। आप हमारे हौसला हमारे तक रहने दें, हमें पता है। नहीं, हमने सुना कि भाई जिंदा दिलाना लाहौर जो है बड़े मजहब के नाम पे, कुरान और रसूल के नाम पे, ब्लेसमी के नाम पे, गुस्ताख तौहीन रसालत के नाम पे लाहौरी सबसे आगे है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए मत निकला। अभी वारिस शमसुल हसन मेरे साथ है, असद साहब मेरे। ब्रेक के बाद मुर्तज़ा मलिक ज्वाइन करेंगे, पूछूंगा उनसे कि क्या वो चुड़ैल की बात से एग्री करते हैं कि नहीं, जो ख्वाब में आती है चुड़ैल और डरा के कहती है कि मियाँ साहब की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर नहीं है, 24 अक्टूबर है। टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले, बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे वाजिद शमसुल हसन की और असद की, और हमें ज्वाइन किया है जियो टेलीविजन के रूह रवां जनाब मुर्तज़ा मलिक साहब, मुर्तज़ा शाह साहब ने यहाँ पे। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि अभी हम तो स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे कि चौधरी निसार ने बयान दिया कि वो सियासत भी छोड़ देंगे, असेंबली छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। आपने अभी ब्रेक के दौरान मुझे बताया कि उनकी तरफ से शायद कोई तरदीद आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी तरदीद भी आई है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोर्ट्समैन है उन्होंने कहा है कि उनका जो आज का जो डिसीजन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, उनका कहना है कि ये कल तक के लिए वैलिड थी और फिर फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया, उनको मनाया और उसके बाद जो उन्होंने बातें आज की हैं वो कह रहे हैं कि ये कल तक वैलिड थी। यानी उनके जो रेजिग्नेशन का फैसला उनकी मिनिस्ट्री से और उनकी जो MNA की पोस्ट है वहां से वो सिर्फ कल तक वैलिड। ये एक मिनट मलिक शाह जी, एक मिनट, ये क्या डाक खाने का खत है एरोग्राम जो मरने के 18 दिन के बाद मिला है किसी को? ये देखिए बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि चौधरी निसार साहब ने एक अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यू टर्न लिया है, पूरा एक वीक उनके अपने यू टर्न कराया। तो देखिए उसूलन तो उनको अगर रिजाइन करते या ना करते उनको कर देना चाहिए। तो मतलब ही हैज क्रिएटेड अ कंप्लीट मेस फॉर हिमसेल्फ। यानी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चौधरी निसार जितना उन्होंने मतलब खुद लीक्स की बात है मीडिया को जो चीजें सामने आई वो
सजेस्ट ये कर रहे थे कि शायद वो बहुत बड़ा कोई किलर फ्लो। वैसे मैं नाजरीन आपको एक बात बताऊं, आज उन्होंने किया है। नाजरीन आपको एक बात बताऊं कि मुर्तज़ा शाह ने, जियो के जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा था, जब पहली बारी खबर आई थी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ नहीं होना इसमें। भाई साहब ये क्या टर्न अराउंड हुआ है? ये तो यानी कि अनाउंस किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर बीच में कमर में दर्द हो गया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, खड़े होकर तकरीर की भी उन्होंने। ये सब चीजें जो हैं कुछ दिनों में जो कुछ भी वाक़यात हुए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नजर आया है कि क्या करने वाले हैं, उसके बाद सारे डिसीजंस लिए गए। इनकी कोशिश इन्होंने भी अपने आप को राम करवाने की कोशिश भी तो की है काफी। आपने ही फरमाया था कि भाई इतने जब सबके अकामे निकल रहे हैं, चौधरी निसार ही बचेंगे ना। बिल्कुल। और फिर लाहौर वाला वाक़या हादसा हो गया, सारी चीजें जो है ये फैक्टर्स हैं जो कि आप देखें जिसकी वजह से आज उन्होंने अपना फैसला आज बनाया है कि भाई मैं सियासत वगैरह से इस्तीफा दे दूंगा और रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर में ही अपना उनके स्पोक्स पर्सन ने कह दिया गलत है। स्पोक्स पर्सन ज्यादा रिलायबल होगा कि बगौल खुद वो जो कुछ कहने वाला क्यों है। जी ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट लगती है कि चौधरी साहब ने पूरे मीडिया के सामने आके चीज़ों का ऐलान किया, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अपने हलके के अवाम में है, तो इसका मतलब है कि वो सियासत से तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है वजारत दाखिला और जो मेंबर कौमी असेंबली है, मैंने सुना था उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। सियासत छोड़ दें, बिल्कुल यही कहा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो उनका हलके के अवाम है। तो हो सकता है चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनके तर्जुमान ने और एडवाइजर ने बताया कि मियां चौधरी साहब ये क्या कर दिया आपने तो सियासत से इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मेंबर असेंबली और वजारत दाखिला इन दोनों से, सियासत से वो इस्तीफा नहीं देंगे। और जहां तक उन्होंने बात की है सियासत में इज्जत की और गालिम गलोच ब्रिगेड की, तो मैं ये समझता हूं कि वो गालिम गलोच ब्रिगेड से थोड़ा फासला कर रहे हैं, और ये जो अभी आपको क़यादत नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की, उससे भी उन्होंने थोड़ा फासला किया और वो कहा कि पिछली सफों में खड़े होकर वो मुस्लिम लीग नून को मैनेज करेंगे। नहीं, लेकिन ये मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मरियम नवाज है, हमजा शहबाज है, ये मेन लोग हैं उस फैमिली के, शहबाज शरीफ हैं, खुद मियां नवाज शरीफ हैं, इनके मुंह से तो मैंने कभी किसी की गाली नहीं सुनी। मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी। जब पत्थर मारने वाले और लोग मौजूद है तो उनको अपना हाथ इसमें नहीं, तो चौधरी साहब किसका जिक्र कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ। यही जो अभी तलाल चौधरी वगैरह हैं या जो दूसरे लोग हैं, मुखालिफत है। मेरा ख्याल है कि ये जरा सी फारफेस्ट है। शायद ही आप जरा को रोशनी डालें इस बात पे। देखिए जो चौधरी निसार साहब के मसाइल वो नजर आते हैं, वो क्लियरली वो खुद भी बता चुके हैं कि उनको जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है उससे बाहर रखा गया, और उनका सबसे बड़ा गिला शिकवा ये है कि जो स्ट्रेटेजी रही है जो मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो कोर्ट रूम की और या कोर्ट रूम से बाहर या उनकी मीडिया स्ट्रेटेजी, उसके हवाले से उनको लूप में नहीं रखा गया। यही सबसे बड़ा उनका मसला नजर आ रहा है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए उसमें यह है कि अगर तो चौधरी निसार साहब एक बहुत बिजी इंटीरियर मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली हुई है, और जो ये क्लियर हो गया है कि पिछले 5-6 महीनों में जो नवाज शरीफ को डिफेंड करने वाला है, या पनामा केस के ऊपर एक हार्ड लाइन देने वाला और एक जो वोकल जो एक एलिमेंट सामने आया, उसमें क्लियरली चौधरी निसार नहीं थे। और शायद कोई भी जो हुकूमत होगी वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी तो उसमें पांच सर्टेन लोग हैं जिनको टास्क दिया जाता है। अच्छा, वैसे मुर्तज़ा साहब मुझे एक बात बताएं, सॉरी कता कलामी हो रही है, मियां नवाज शरीफ के अलावा आप में भी बड़ा हौसला है जो सोशल मीडिया पे थी तनकीद आप बर्दाश्त कर लेते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। ये क्या वजह है? देखिए मुस्लिम वजह साहब, ये जब आप पब्लिक में होते हैं, आप इस तरह के कुछ मतलब अपने व्यूज रखते हो, आपके क्रिटिकल व्यूज हो, तो आपको ये तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये प्लस पॉइंट भी है कि आप उस एक आपकी आउटरीच डेवलप होती है, लेकिन उसका नेगेटिव ये भी है कि आपको गालियां भी पड़ती हैं, थ्रेट्स भी मिलती हैं, बहुत सारी गलत और सही बातें भी होती हैं। ये इसका ये तो ये पैकेज है जो आपको बाय बीइंग अ जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की पोलराइजेशन हो चुकी है पाकिस्तान की, जो एक पॉलिटिकल जो एंटिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ चुकी है, पोलराइजेशन हो चुकी है, गालम ग्लोच का कल्चर डेवलप हो चुका है, और इन मीडियम्स को यूज करके आप तो समझते हैं
آپ کو पता, आप बहुत एक्टिव यूजर है इसके, कि इसको बुनियाद बना के बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन इसके लिए आपको I would say that you have to develop a thick skin. आपको सारा कुछ तो बर्दाश्त करना नहीं, क्या ये मैं शायद ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर ARY या चैनल 24 देख रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में हुकूमत फारिग है। और जब मैं आपका मोहतरम चैनल जियो देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है हुकूमत तो अभी फिरौन के ज़माने से चल रही है और पता नहीं अगले को 200-400 साल तक चलेगी। इतना तजाद भी तो नहीं होना चाहिए ना मीडिया में। देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो सिनारियो आप देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत गिर रही है और दूसरी तरफ नहीं गिर रही, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये पिछले 4 साल से देखते हैं और अगर जियो पे हुकूमत गिरती हुई नजर नहीं आई तो 4 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका और हुकूमत नहीं गिरी है। दैट मीन्स के जो एक फेयर और जो फैक्ट है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है कि हुकूमत इज स्टिल देयर। अगर उससे कॉन्ट्ररी अगर आप वैसे सुबह से शाम तक अगर चैनल हुकूमत को या किसी PTI को, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी उसको गिरा के बेशक सो जाए, अगले दिन तो उससे नहीं होना है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखिए ये चैनल हुकूमत ना इनको सोचना चाहिए बनाते हैं ना गिराते हैं, तो एक फेयर और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उसमें बैलेंस रखना आई वुड एग्री कि बहुत जरूरी है। और जो आपकी बात पे मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो आपने कहा कि बैलेंस होना चाहिए, और यस दिस शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट इन रिपोर्टिंग की एक रियलिटी है, वो एग्जिस्ट करती है और वो है, उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। अच्छा खासा आप मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं मुर्तजा शाह साहब, आप एक मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। मैंने हमेशा आप पे और आपके चैनल पे तनकीद की, आज मुझे एग्री करना पड़ जाएगा इस बात पे। अब आप मेरा रिकॉर्ड तो ना खराब करें। तो क्यों जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैंने कहा जी मेरा रिकॉर्ड तो ना खराब करें ना, मुझे आपसे एग्री करना पड़ रहा है इस बात पे। आज तक तो डिसएग्री करता है। देखिए ये कि हम दोस्त हैं और यही बात है, ब्यूटी यही है कि हम भी अग्री टू डिसएग्री एंड इन पोलाइट वे, एंड वी हैव डन दैट ओवर मेनी इयर्स। कि आप मेरा मौक़िफ़ सुनते हैं, मैं आपका सुनता हूँ, तनकीद करते हैं, और फिर हम और यही मैं समझता हूँ कि होना जरूरी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल कम्प्लीटली आप डिसएग्री करें, लेकिन एक बहुत एक पोलाइट और एक सिविलाइज मैनर में, कोई व्यूज किसी को दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। और मैं फिर वही बात आप वाली जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कहूँगा कि देखिए जो इस वक्त जो बैलेंस है, सबसे बड़ा बैलेंस का बंद करा गया कि एक मुबशर साहब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि उस स्टैंडर्ड पे जब तक जाके आप तनकीद नहीं करेंगे या गाली नहीं देंगे, एक सर्टेन लेवल तक जब तक आप आवाज ऊंची नहीं करेंगे और एक हाइप जब नहीं क्रिएट करेंगे, इसके आप काम नहीं कर रहे, और यही डैमेजिंग हो रहा है। क्योंकि देखिए रियलिटीज मीडिया के कहने पे बहुत सारी रियलिटीज जो चेंज नहीं हो रही, बहुत सारे जो माइंड है मुबशर साहब जो मीडिया के कहने पे चेंज नहीं हो रहे, और ये फैक्ट है, और जो मीडिया को भी मानना पड़ेगा कि हमें अपने रवैयों में, अपनी रिपोर्टिंग में और जो ऑब्जेक्टिविटी और जो एक फेयरनेस है उसको लाना इंतहाई जरूरी है। एक मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपको लंदन के हवाले से, बिलखुसूस बरतानिया के हवाले से। मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि 2 साल हो गए हैं बरतानिया, बल्कि खुसूसन लंदन में एसिड थ्रोइंग अटैक्स जो हैं उनके अंदर बहुत शिद्दत से इजाफा आया। और लंदन में साल 2015 में 261 अफराद पे तेजाब से हमला किया गया, और 2016 में ये बढ़कर 454 पर पहुंची, जो 76% इन हमलों में इजाफा था। इसी तरह 2016 में बरतानिया भर में 1800 से जायद एसिड अटैक्स हुए, और उनमें ज़्यादातर मुसलमान बरतानवी शहरियों पर हुए। अब 2017 में भी जो एसिड अटैक्स हुए वो कुछ मुसलमानों पे हुए, और एक आम तासुर जो दूसरा मीडिया यानी नॉन ब्रिटिश मीडिया दे रहा है वो ये है कि गालिबन मुस्लिम्स के ऊपर कोई हेट वेव चल रही है। मैं पिछले इतने दिनों से बरतानिया में हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मुझे इस फियर का, इस हेट वेव का अल्लाह का बड़ा करम है, अभी तक मुझे तो सामना नहीं है, ना मैंने कोई देखा है। और मुझे ये भी रिपोर्ट्स मिली हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट जो है वो मुर्तज़ा शाह की है कि ये एक्चुअली गैंग वॉर्स हो रही हैं, और इसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले चंद मुसलमान अफराद हैं, और इनको यानी रिलीजियस कॉनोटेशन दी जा रही है, जबकि ये रिलीजियस लड़ाई नहीं है, ये इलाकों में गैंग्स की लड़ाई है। मुर्तज़ा शाह आपने इस पर रिपोर्ट लिखी है, आप क्या कहेंगे तफसीलन? जी, इससे मैं देखिए मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं कि ये जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं लंदन में, इसमें जो जैसा आपने खुद अभी
कह दिया है कि इसके ऊपर देखिए ये चूंकि लंदन में जो अटैक्स हुए हैं उसके बाद ये फिनोमेनन शुरू हुआ, जो उसमें क्लियरली मुसलमान मुलव्वस थे, लेकिन उसके बाद जब एसिड अटैक्स हुए तो समझा ये गया कि क्योंकि ये इनिशियली ज्यादा मुसलमानों के ऊपर समझा गया कि शायद ये टोटल एक इस्लामोफोबिक अटैक है। लेकिन अभी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लियरली दो बातें सामने आ रही है कि ये वाकई में कुछ ऐसे वाकयात थे जिनको खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया गया, बाद लोगों ने गाड़ियां रखी हुई थी और इस बुनियाद पर हुआ। लेकिन उसके बाद एक बहुत पैरेलल रियलिटी है और वो ये है कि जो इसमें अभी तक जो लोग चार्ज हुए हैं उनमें दो तो ऐसे गोरे चार्ज हुए जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इस्लामोफोबिक अटैक थे। लेकिन ईस्ट लंदन में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे अटैक्स हुए वहाँ पे आज से 5 दिन पहले वहाँ पर 2 बांग्लादेशी जो मुसलमान है वो चार्ज हुए और ये पता चला है कि उन्होंने जो अपने ही जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो स्ट्रीट गैंग्स हैं वो गैंग वॉर में इन्वॉल्व है। अच्छा एक सेकंड, मैं क्योंकि बरतानवी शहरी नहीं हूँ, मुझे जरा एक चीज एक्सप्लेन करें, चार्ज होने का क्या मतलब है? देखिए दो बातें, चार्ज होने का यहाँ मतलब ये है कि अनलाइक पाकिस्तान है कि अगर यहाँ पे वारदात हो गई उसके बाद पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करती है, तो जब पुलिस को पता चल जाता है कि एक सफिशिएंट एविडेंस उनके पास आ गया है कि कोई बंदा क्राइम में इन्वॉल्व, तो फ्रेम कर देते हैं, बात का यकीन हो जाए कि उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, तब उसको चार्ज किया जाता है। और ये जिन लोगों को चार्ज किया गया उनके ऊपर ये शवाहिद, सीसीटीवी फुटेज और उनके ऊपर इतने शवाहिद अब मौजूद है कि पुलिस ने उसके बाद उनका नाम दिया, उनको चार्ज किया और अब उनको कोर्ट के सामने भी उनको पेश करके उनको जमानत पर रहा किया गया। वो ट्रायल पे जाएंगे जहाँ पे पुलिस को यकीन है कि इन लोगों को जेल होगी। सो पुलिस के पास अब इस बात के शवाहिद मौजूद है कि अब गैंग जो है, गैंग जो फाइट है तो टफ वॉर हो रही है ना, ये इसका मतलब है। दिस इज मोर ऑफ अ टफ वॉर। बिल्कुल ये टफ वॉर हो रही है। और ईस्ट लंदन और नॉर्थ में जो अब मामूल के जो वाक़या, देखिए इसकी वजह मैं अगर आपको बताना चलूँ वो ये है कि जो एसिड अटैक है कि एसिड जो मिल रहे हैं वो इजीली अवेलेबल है, वो लीगल है। अब वो तो टॉयलेट धोने के लिए मिल जाता है ना बाजार से, खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है और जो गैंग्स है उनके लिए इजी तरीका यही है कि वो उसके एसिड अटैक्स को स्कोर सेटल करने के लिए एक दूसरे के ऊपर यूज कर रहे हैं। राइट, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इस रिपोर्ट से कि ये गैंग वॉर है, क्योंकि मैं खुद मुशाहिदा कर चुका हूं कि 7 से ज्यादा ऐसे हमले जिनकी वजह से ये तेजाब गर्दी जो है वो मौजूद बहस बनी, पार्लियामेंट में उसका जिक्र हुआ। पहला वाकया था रेशम खान का, जो खातून थी अपने कजन के साथ जा रही थी, बिल्कुल रैंडमली, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो ट्रैफिक इशारे पर आकर रुकती है और कोई उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है विंडो नॉक करके। और दूसरा वाकया ग्रेव्सएंड का, कैंट का एक वाकया है कि पूरी फैमिली लंदन आई विजिट करने के लिए, खाना खाने के लिए, और उनके जो 2 बड़े बच्चे थे उनके ऊपर रैंडमली, कोई उनकी जान पहचान नहीं थी, कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया, उनके ऊपर हमला किया गया, एक अभी तक देखने से कासिर है। और 3 बड़े वाकयात जो हुए हैं वोल्थम फॉरेस्ट में और 1-2 बड़े वाकयात हुए हैं इल्फर्ड के इलाके में। तो ये कोई उनकी गैंग वो नहीं थी। प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि अगर 554 वाकयात हुए उनमें से 6 वाकयात जो हैं वो एक पैटर्न पे हैं, तो वो कोई मेजॉरिटी पैटर्न तो नहीं इंडिकेट कर रहे। लेकिन क्यों भाई साहब, नहीं बिल्कुल डू यू एग्री? भाई देखिए एक और ये एसिड वॉर तो अब शुरू हुई है ना, इसके अलावा एक और चीज हो रही है, नाइफिंग हो रहा है। यंगस्टर्स जो है नाइफिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है इसमें, मगर इसमें आपको एथनिक वो एलिमेंट नजर नहीं आता। या आपस में है, या तो काले कर रहे हैं या गोरे आपस अपना गैंग वॉर है, कोई गैंग वॉर का आपने यू हैव आइडेंटिफाइड वेरी वेल कि गैंग वॉर है। इंटरेस्ट है, उनके एरियाज बंटे हुए हैं। और ये इल्फर्ड वगैरह की बात करें ना, ये तो वही रही है जहाँ की कम्युनिटीज हैं जिनमें आपस में उनके जो गैंगस्टर्स हैं वो अलग अलग मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे का। और मैं आपको कुछ चीज़ और अर्ज करूँ, जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा इसमें न्यूकासल में हुआ था कि एक रात को झगड़ा हुआ 2 कम्युनिटी में, हमारे भी थे और दूसरे लोग थे। पुलिस आने से पहले सबके सब उनको पता लग गया पुलिस आ रही, तो सबके सब अलग हो गए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं गया विजिट कर रहा था, तो वो मुझे अपने पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए। उन्होंने कहा नहीं हम पकड़ेंगे सबको, हमने आइडेंटिफाई कर लिया भी ये CCTV से। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने कहा हमने 50 आदमियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इनको पकड़ लेंगे हम। ये जब KF4 पे अटैक्स हुए थे,
جی मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने 3 हफ्ते हमने कितने तेजाब हमले सुने बरतानिया में, मैंने तो कम से कम कोई ऐसा अगर वाकया 550 हो रही हैं एक साल लेकिन में, बड़े छुपे डुके थे, ऐसा नहीं था। वो शर्मीन उबैद वहां पे रहती है ना, यहाँ पे रहती नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चला। लेकिन जब से ये बड़े वाकयात हुए हैं आफ्टर ये लंदन ब्रिज के वाकये के बाद और फिजबी पार्क के वाकये के बाद, फिर ये एस्कुलेट हुए हैं, फिर ये मीडिया पर भी आए हैं, लोगों ने बाहर आके उसका मातम भी किया कि देखिए हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है असद के, हो सकता है कि हम लोग इसको मिस रिपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा भी है, और ये भी है कि हो सकता है कि जब से गैंग्स ने ये देखा है कि ये तो इजी वे है टू बाय एंड डैमेज टू अदर्स, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नाइफ लेके चलने की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं अभी मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी ना जी अभी बहुत क्लियर आ रही है। स्कॉटलैंड तक मैं होके आया हूँ खुद ड्राइव करके, और जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो हर आप 15 मील के बाद रुकते हैं कोई रेस्ट एरिया में, कभी को कोक पीनी होती, कभी वैसे ही है वो। तो मुझे एक इंसिडेंट भी है डिस्क्रिमिनेशन का नजर नहीं आया, इतने तमाम यानी कोई 14, 15, 1600 मील ट्रैवल करने के बावजूद, और कम से कम कोई 40 जगहों पे रुकने के बावजूद, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हाउसेस में, बीचेस के ऊपर, बोट्स के ऊपर, फेरी के ऊपर। तो मैं कैसे मान लूं कि ये सोसाइटी में है जबकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। पंजाब के दूर दराज